فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. 1448 نجی کے محرم شریف کی آج 26ویں شب ہے. اس مناسبت سے 26 کی مناسبت سے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے. مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک ان صلاۃ السلام تک ٹھہرا رہوں گا اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور انہیں حسب ضرورت انفرادی کوشش نیکی کی دعوت وغیرہ کی بھی ترکیب کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرہ جاری ہے. اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. কেমন আছেন ভাইয়া? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ. আচ্ছা ভাইয়া, আপনি হাতে যে চুমু খেয়েছেন, সচরাচর দেখি যে কোনো মুফতি বা কোনো আলেম বা কোনো পীর মাশায়েখ ওনাদের হাতে চুমু খেতে দেখি, নিজের হাতে নিজে চুমু খাওয়া এরকম তো দেখা যায় না. চলুন আমরা এই বিষয়ে আমির আহলে সুন্নাতের কাছ থেকে জেনে নিই. আমার নাম আনোয়ার হোসেন আফতারি. আমির আহলে সুন্নাতের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে ইসলামী ভাইরা হাতে চুমু খেয়ে হ্যান্ডশেক করে, এই পদ্ধতিটা কেমন? এ বিষয়ে আমাকে কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন. بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں بعض اسلامی بھائی ہاتھ ملا کر اپنے ہی ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. ہاتھ ملا کر اپنا ہاتھ چومنا باہر شریعت میں مکروہ لکھا ہے، اور جد الممتار جو اعلیٰ حضرت نے رد المحتار پر حاشیہ لکھا اس میں ہے کہ اگر جس سے ملاقات ہاتھ ملایا وہ عالم دین ہے، بزرگ ہیں اور
तबर्रुकन यानी बरकत लेने के लिए अगर हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ चूम लेता है तो जायज़ है, हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे हजरत साहब से एक सवाल है। पिछले दौर की जो लोग थे वो उलमाए कराम और मशाइख और अल्लाह वालों की बहुत इज्जत और कदर और एहतराम करते थे, उनके सामने बात भी नहीं कर सकते थे, न करते थे। अभी ये यंग जनरेशन जो है ये फेसबुक और सोशल मीडिया के पे जो हम लोग देख रहे हैं वो उलमाए कराम मशाइख अल्लाह वालों दिन वालों की जो है बहुत वो मजाके भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो अभी यंग जनरेशन को जो है हम लोग कैसे समझाए कि वो वापस अल्लाह वालों की वो इज्जत और कदर और वो तरीका अपनाए जो पहले था। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। दरअसल पहले के माहौल में और अब के माहौल में वाकई फ़र्क तो पड़ गया है। काम ये कि अगर घर का माहौल अच्छा हो ना, घर में जैसे कि हर महीने गौस पाक की 11वीं शरीफ होती हो, दीगर बुजुर्गान दीन के उर्स मनाए जाते हों, कभी साल में एक आध बार कोई नात ख्वानी की तरकीब हो जाती हो, कुरान ख्वानी की तरकीब हो जाती हो, गौस पाक के तस्करे दीगर औलिया किराम के वाक़यात बयान किए जाते हों, ये माँ बाप ये कर सकते हैं। अगर अपने माँ बाप जो है ना ये बुज़ुर्गों के किस्से इनको सुनाते रहेंगे ना बच्चों को, तो इनका जहन जो है ना ये बनता रहेगा। अब माँ बाप ये बातें तो अब कम ही करते होंगे, बस वो मोबाइल फ़ोन बच्चे को देते हैं, वो बच्चा इसमें से ना देखने वाली चीज़ें देख रहा होता है और इसके मुंह में निवाले झोंक रहे होते हैं। ये निज़ाम आजकल बना है। तो अब बचपन से ही ये सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है छोटे बच्चों को, जिनको बात करना भी नहीं आती, हाथ में से मोबाइल होता है। और ये जो मैं कहता हूँ ये घर घर की कहानी है, सब समझते होंगे ये मुझे कह रहा है, हाँ आपको ही कह रहा हूँ। अपने हाथों बच्चों को हम लोग मिलजुल के बर्बाद कर रहे हैं। अब इतना बर्बादी हो गई है कि अब मोबाइल छीनना भी अब करीब करीब नामुमकिन हो गया है। शुरू से ही अगर न दिया जाता इसको, लेकिन अब हर फर्द घर का लेके यूँ देख रहा है, तो आप बच्चे को नहीं भी देते तो वो चोरी छुपे देखेगा कि यार इसमें है कुछ ज़रूर। तो यूँ बच्चा जो है इसका अब बचना बहुत मुश्किल है। शुरू से बस बच्चों को अहलुल्लाह की मोहब्बत दिलाई जाए। वो हदीस पाक में भी है ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान पाक पढ़ना। शुरू से अगर माहौल होगा ना, सादात किराम की मोहब्बत, हसन करीमैन, शहीदान करबला और बीबी फातिमा, मौला अली, फिर यह कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हमने तो ये सारे नाम जो मैं ले रहा हूँ ना, ये समझो ये बचपन से सुने हुए। और दिल में मोहब्बत भी, यानी कि अदब, ये हमारी बुलंद वाला हस्तियाँ हैं, इस अंदाज से बचपन से सुने हुए। लेकिन अब माहौल शायद वो सा नहीं है, लेकिन मायूसी नहीं है। अगर आप गुनाह भरे चैनल घर में ख़त्म कर देंगे, घर में सिर्फ मदनी चैनल चलता रहेगा, तो ये जो आप चाहते हैं इंशाल्लाह ये बातें मदनी चैनल आपके बच्चों को सिखाता रहेगा। जन्नत में जाना है ना, अच्छा ख्वाहिश तो है ना कि बच्चों को लेकर जन्नत में जाएं, तो मदनी चैनल अपने घर में लगा लें। सारे गुनाहों भरे चैनल बंद कर दें तो ये मदनी चैनल आपको उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाएगा, ये नहीं कह रहा। इससे आप नेकी की बातें सीखते रहेंगे, इंशाअल्लाह अमल करते रहेंगे, जन्नत में अल्लाह की रहमत से चले जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुलाम अली अत्तारी लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल अर्ज़ है कि अकीके का गोश्त शादी, निकाह और दीगर तकरीबात में क्या खिलाया जा सकता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। हमारे घर के तमाम मसाइल के हल के लिए दुआ भी फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जो जिसने हकीका किया वो इस गोश्त का मालिक है, बिल्कुल शादियों में और जायज़ दावतों में उसके इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
پیارے امیر اہل سنت، میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا کہ نماز جاری رکھے یا نماز توڑ دے؟ براہ مہربانی رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ نماز جاری رکھ کر بھی اگر خود بخود وضو ٹوٹا، ارادتاً نہیں توڑا، جان بوجھ کر، تو اس کے مسائل ہیں تھوڑا پیچیدہ، اور بہتر بھی یہی ہے کہ نئے سرے سے وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین، سایہ افغن ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی: اے مالک بے نیاز، اے رب کریم، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو عرصہ دراز تک تیرے دین اور تیرے بندوں کی خدمت کرے۔ اللہ پاک نے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دعا قبول فرمائی۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بندہ اس وقت تک اللہ پاک کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ پاک سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی نیک، سواری اچھی اور گھر وسیع ہو۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں تیسرے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ دوسرے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 تاریخ پیارے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتیں اللہ کی راہ میں قربانی کا درس دیتی ہیں۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے اپنے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دن کو اچھے کام پر ہی ختم کیا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہیں انہیں مت لکھو۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذان دینے والا کے طالب ثواب ہے، اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مر جائے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمانے مفتی احمد یار خان: نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہیں۔ واہ بھائی واہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور اگر نابالغ بچوں کو کوئی شخص تحفہ دے، اب وہ تحفہ ان کے استعمال کے قابل نہ ہو یا انہیں پسند نہ ہو یا ان کے لیے مضر ہو، تو اس صورت میں اس تحفے کا یا اس چیز کا کیا کیا جائے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بعض اوقات تو جو تحفہ دیا جاتا ہے بچے کے نام پر وہ سب کے لیے بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اب مٹھائی کا 2 کلو کا ڈبہ دیا آپ کے بچے کو، لے بیٹا تحفہ، اب وہ کیا کھائے گا؟ سارا یہ قرینہ موجود ہے کہ یہ سب مل کے کھائیں گے۔ اچھا، اب واقعی اس کو کسی نے ملک اس کی کری ہے کسی چیز، اور اکثر ملک کرتے ہیں، جیسے عیدی دیتے ہیں یا ویسے کوئی خرچی وغیرہ بچوں کو دیتے رہتے ہیں لوگ، ٹافیاں دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو بچے کھاتے ہیں، تو یہ تو ان کا مالک بن جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس کو دوسرا استعمال نہیں کر سکتا، نہ دوسرے بھائی بہنوں کو یہ کھلا سکتا ہے، نہ چھوٹوں کو نہ بڑوں کو، کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ اب اگر یہ جیسا ادھورا کھایا،
اور اب نہیں کھاتا, ڈال دیا, اب سنبھال کر رکھ کر دوبارہ کھلانے کے قابل ہے تو اس کو سنبھال دیا جائے, فریز میں رکھ دیا جائے. اس کے بھی قابل نہیں ہے, ضائع ہو جائے گا, اس نے پھینک دیا, ڈال دیا. بچے کرتے ہیں اس طرح, وہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا کھا کے. تو اگر واقعی ایسی چیزیں پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ بچ کر اس کو دوبارہ کھا لے گا تو بچانا ہوگا, ورنہ پھر کوئی بھی کھا لے ضائع ہونے سے. اگر ہونا ہی ضائع اس نے تو پھر وہ کھا لیا جائے. اب اس کے لیے مضر ہے وہ چیز, تو ذرا مضر تو وہ بھی نہ کھائے اور بڑا بھی نہ کھائے. مضر نقصان دہ تو نقصان دہ. اب اگر بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور بڑے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو بڑا ہونے تک اس کو سنبھالنا ممکن ہے, سنبھال کر رکھ لیا جائے. تو ہے مشکل نا, کھانے کی چیزیں تو سنبھلے گی کیسے. اب اس صورت میں مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے اور اب اس کا کوئی اور حل نہیں ہے اس شے کا, تو یہی ہے کہ بازار کی قیمت کے مطابق اس چیز کو لے لے اور اتنی رقم بچے کے لیے محفوظ کر دے, یا اس کے کسی جو ضروری کام ہے ان میں وہ رقم استعمال کر لے. ذہن میں تو تھا میرے, اب وہ بولنا ہرو برو مطلب اس کو خریدے, مضر چیز کو بندہ باپ پیسے اس میں صرف کرے, تو کام کی نہیں نا, مضر چیز ہے. اس میں جو تفصیل آپ نے بیان کی یعنی خود ان کے لیے مضر نہیں ہے, بڑوں کے لیے. تو اس بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جو سب کے لیے مضر, جیسے ایسی غذائیں دے دیتے ہیں جو سب کے لیے مضر ہوتی ہے. بعض غذائیں ہوتی ہیں کہ وہ باپ کی پرہیز ہی ہے, وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوئی, سب کے لیے نہ ہوئی, اور بچے کے لیے بھی نقصان دہ. تو اب بہرحال یہ کہ یہ حل تو ذہن میں تھا میرے کہ وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کو پرچیز کر لے, خرید لے. بچے یعنی بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, مالی نقصان جس کو بچے کو نہیں ہونا چاہیے. بڑا ہو تو الگ بات ہے, بچے کو نقصان, تو بچے کو بچا لیا جائے, تو اس چیز کو خرید لیا جائے. اب اس کو مسئلہ سمجھیں, مشورہ سمجھیں. یعنی اگر واقعی مضر چیز ہے تو بھی خریدنے میں, اگر وہ چیز ایسی کہ جو خریدی جا سکتی ہے تو خریدنے میں تو حرج نہیں ہوگا. یعنی چیز ایسی ہے وہ خرید کر جس کے لیے مضر نہیں ہے اس کو گفٹ بھی تو کر سکتا ہے, گھر کے کسی فرد کو بھی کام آ سکتی ہے. آج کل تو خیر بچوں کے مال میں بالکل بلا جھجک تصرف ہوتا ہے, ہر چیز بچے کی استعمال کر لی جاتی ہے, کہیں سے بھی ملے اس کو تو وہ مل جل کے یہ دوسرے بچے کھا لیتے ہیں. خود بچوں کا ذہن بنانا یہ بھی قریب ناممکن ہو گیا ہے, وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ دوسرے بچوں کو کھلا دیں گے, دوسرے بچوں کی ہڑپ کر لیں گے لے کے. یہ ہڑپ کر جانا, چھین کر, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ حقوق العباد میں سے یہ معاف نہیں ہے بچے کو بھی. بچے کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہے, مگر بندے کا حق تلف کرتا ہے نا بچہ, جس چیز کی لے لیتا ہے, کھا لیتا ہے. یہ اس کو اس کے پیسوں سے پیمنٹ کرنی پڑے گی. بچوں کے پیسوں سے جس کی چیز لے لی دوسرے بچے کی, وہ کھا گیا یا توڑ پھوڑ ڈالی, جو بھی کیا, تو اب یہ کہ بچے ہی کے پیسے سے اس کا تاوان دیا جائے, یعنی کہ جو نقصان ہوا پیمنٹ کر دی جائے, ویسی چیز دے دی جائے, یا جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی اتنی رقم دے دی جائے اس بچے کو. اور بچہ معاف بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی ذہن میں رکھیے. ہاں, وہ بچے کے مال سے پیمنٹ نہیں کرنا چاہے تو باپ اپنے پلے سے بھی کر سکتا ہے پیمنٹ. کوئی بھی بڑا گھر کا فرد اس بچے کی طرف سے پیمنٹ کر سکتا ہے, لیکن یہ ورنہ یہ ہو حق العبد جو ہے نا, یہ بندے کا حق, یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی کہ وہ ادا کیا جائے, اور اگر ظلماً وہ حق تلف کیا تھا تو توبہ بھی کی جائے. لیکن اب بچے چونکہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو گناہ نہیں ملتا. بندے کا حق جو ہے نا, یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بندے کا حق کتنا اہم ہے. دوسروں کی حق تلفی ہے, سیدھا بیٹھ چل, کیا گھسا پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا نا, ایزی لے لیا. جب ایزی نہیں ہے, پہاڑ سے وزنی ہے. دل دکھا دیا آپ نے کسی کا, اس طرح اس کو ڈیگریڈ کر کے, اس کی تذلیل کر کے. مسلمان کی عزت ہے, اور عزت نفس ہر ایک کی ہوتی ہے. آپ نے اس طرح بیچارے کو اس طرح جھاڑ دیا, ڈانٹ دیا, اور آپ کو تو ایزی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ جو کیا تھا نا آپ نے.
इनको कितनी नेकियां देनी पड़ती हैं, और नहीं हुई नेकियां तो फिर इनके गुनाह लेने पड़ेंगे और जहन्नम की तरफ जाना पड़ेगा। किसी का दिल दुखाना, झाड़ देना, किसी की चीज खा लेना बगैर पूछे, हमारी तो चलती है करके वो हड़प कर गए, क्या चलती है, बेचारा नहीं बोलता, बाद मुरव्वत में नहीं बोलता, दिल में नागवारी होती है उसके, लेकिन हम इन चीज़ों को समझते नहीं है, बहुत इजी लेते हैं, इजी नहीं है। बहरहाल ये बंदों के हक से हुकूक को बहुत समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आप मदनी मुज़ाकरे सुनते रहेंगे, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहेंगे, काफ़िलों में सफ़र करते रहेंगे, नेक आमाल का रिसाला लेकर इसके मुताबिक अमल करके पुर करते रहेंगे। दावत इस्लामी में मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, फैज़ान ऑनलाइन से ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये सब करते रहेंगे ना आप, तो अल्लाह करेगा तो जहन मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा और गुनाहों से बचने का इंशाअल्लाह बहुत तरकीब बन जाएगी। इंशाअल्लाह खाली चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। भूख लगी है, खाली खा लूँ खा लूँ खा लूँ, चाह रहे खा लूँ, भूख नहीं मिटेगी, भूख बढ़ती चली जाएगी। खाएंगे तो भूख मिटेगी ना, तो खाली चाहने से नहीं, करने से होगा। तो कोशिश करेंगे, दुनिया भर के कामों के लिए हमारे पास टाइम है, नहीं है तो दीन के लिए टाइम नहीं है, अफसोस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल है कि आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बच्चों के लापता होने, अगवा किए जाने और इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की तशवीशनाक ख़बरें सामने आ रही हैं। इन हालात के पेश नज़र वालिदैन, सरपरस्तों और घर के दीगर अफराद ने अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से फ़ितरी तौर पर फ़िक्र पाई जाती है। आपसे अर्ज़ है कि वालिदैन और घर के दीगर अफराद अपने बच्चों की हिफाजत के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन कौन सी ज़रूरी एहतियातें तदाबीर इख्तियार करें और बच्चों की मुनासिब अंदाज में ऐसी तरबियत किस तरह करें कि वो महफूज रह सके। निज बच्चों और घर के दीगर अफराद की हिफाजत के लिए कोई वजीफ़ा या कुरानी आयत भी इरशाद फरमा दीजिए जिसे पढ़कर इन पर दम किया जा सके। अल्लाह पाक रहम फरमाए और हमारे बाल बच्चों की हिफाजत करे। वाकई हालात में से अभी पिछले दिनों एक खबर ज़रा मुश्तहर हुई थी, 6 साल का बच्चा, उसके पड़ोसी ने अगवा किया और ज़्यादती करके उसको बेचारे को, फिर ये हवस गालिब आती है तो ये कर लेते हैं। अब फंस के अब ये तो बोल देगा सबको, तो इज्जत के लाले पड़ जाते हैं, तो फिर ये कि उसको मार देते हैं। वाक़यात होते रहते हैं। तो इसको भी बेचारे को, बच्चे को 6 साल के मार दिया। 4 बहनों का एक भाई था, ये इकलौता बेटा था, और आखिर मुलजिम जो भी था वो बतौर मुजरिम या मुलजिम तो पकड़ा गया। अब खुदा बेहतर जाने कि ये वही था या क्या था, सारे इसमें डीप तो जा नहीं सकते, खबरें होती हैं ये। तो ये कि उसने जो बच्चे को 3 दिन तक मार के रखा, ये भी खबर थी, और फिर बोरी में बंद किया कि अब इसको भुगताएं कैसे। फिर इसने छत से फेंक दिया। अक्ल बेर मार जाती है ना, अपने मकान के पास कोई फेंकेगा लाश, तो जितनी भी गली में मकान आते हैं सबकी तफ्तीश तो होगी। पुलिस तो उस 7वीं ज़मीन से गड़े हुए को निकाल के लाती है, 100 साल के मुर्दे को उखाड़ के लाती है। आप पुलिस को क्या समझते हैं? ये बड़ी ट्रेनिंग होती है। अगर ये इंसाफ करने पर आए तो एक भी गुनाह कोई करके दिखाए, नहीं कर सकता, कोई भी जुर्म नहीं हो सकता। जहाँ सख्तियाँ हैं जराइम पर, हम तो आना जाना है ना, आदमी सोच भी नहीं सकता कि वहाँ कुछ करे। यहाँ जो दादागिरी, इतो मारा, घोंसा, ये उठा के फेंक दिया। बाहर अगर कोई खाली यूं करे ना, और अगर उसने FIR फड़वा दी ना, तो अभी ये यूं जो है ना, ये यूं ही रहेगा, और यूं करके वो जेल के अंदर चला जाएगा। हाँ, ये सही बात बोलता हूँ मैं। यानी कि हमारे यहाँ तो पिस्टन दिखाना भी काम हो गया है। यानी खाली कोई चम्मच भी दिखाए ना, एक मुल्क में गया था, वहाँ कह रहे थे मुझे क्या करी, वो एक चम्मच किसी को दिखाए ना धमकी के अंदाज में, पुलिस उसको भी पकड़ लेगी तो मरा। फिर कवानीन सख्त तो जराइम कम होते हैं। तो बहरहाल जहाँ कवानीन पर अमल नहीं, कवानीन होते हैं, तो वहाँ जराइम ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल एक सेल्फ सर्विस, अपनी मदद आप के तहत हम सबको एहतियातें तो करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। अब बच्चा है, इसको समझ नहीं आती, और वाकई
बकरा संभालना आसान है, बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बकरा कैसा भी शरारती हो, दिक मारता हो, इसको रस्सी मान के आप खूंटे पे घर में बांध कर मुतमईन है कि ये कुछ नहीं करेगा, जा नहीं सकता। बच्चा 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 है। आपने ऊपर की कुंडी लगाई तो ये स्टूल घसीटेगा, कुर्सी घसीटेगा तो खोलेगा, भाग जाएगा बच्चा। तो यूं बहरहाल है तो आजमाइश। तो फिर भी बच्चे को बड़े से दोस्ती ना करने दी जाए। अब देखो ना, जो ये गुनाहों के काम होते हैं ना, ज्यादतियों के वाकयात, ये पहले बच्चे को यूं थोड़ी उठा जाते होंगे, मानुस करते होंगे, कभी टॉफी देते होंगे, कभी मतलब कोई चीज़ खिलाते होंगे, कभी रकम दिखाते होंगे, और हंस हंस के उससे बातें करके मजाक मस्करियाँ करके हिलाते होंगे, फिर जो मतलब माज़अल्लाह। तो इस तरह अपने बच्चे को बड़ों से उसको दोस्ती ना करने दी जाए। आपको भी लगेगा बड़ा अच्छा आदमी है, नेक नमाजी आदमी है, अरे ये चीज़ ऐसी है जो बादशाहों को गुलाम बना लेती है। ये जो ख्वाहिश है ना, ये जो ये 6 साल के बच्चे का वाक़या हुआ, तो अखबार में ये भी था कि ये हाफिज था, ये मुजरिम या मुलजिम जो भी है, हिफ्ज़ भी किया हुआ था इसने। अब खुदा बेहतर जाने, तरह तरह की खबरें होती है, लेकिन ये इस मुसीबत में पड़ गया। तो शैतान तो बेका देता है, बड़े बड़ों को बेकाता है शैतान। पहले मतलब ये गुनाह करवाता है, बाद में बोलता है कि यूं कर ले तो बच जाएगा, जैसे कि तो ये कर ले, तो अब भी आंखें बंद करके उसने गुनाह कर दिया, अब तेरी इज्जत का सवाल है। अब शैतान ने बोला मर गया तो अच्छा क्या हाल है, मार डाल इसको, तो मार डाला शैतान की बातों में आकर। अब क्या होगा, लाश तो ये सड़ेगी गलेगी, तो बदबू में पकड़ा जाऊंगा, तो ले बोरी, अच्छी तरह बांधना इसको, जरा अच्छी तरह बांध के फेंक दे बाहर। तो शैतान की बातों ने फेंक दिया, हथकड़ियाँ पहन ली, सरियों के पीछे चला गया। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो लंबा प्रोसीजर है। सर इस्लामी सजाएं जो है ना, ये अगर नाफिज हो ना तो फिर ये बुराइयां रुक सकती हैं। लेकिन सारे इस्लामी सजाएं तो जो कई सजाएं ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी मैंने नहीं सुना कि किसी इस्लामी मुल्क में राइज हों, मेरी मालूमात में नहीं है। तो बहरहाल ये क्या, तो इसलिए वो बड़ी बाज़ों को सजाएं ऐसी होती हैं। और फिर ये कि मालदार की अलग सज़ा होती है, गरीब की अलग सज़ा होती है, इसकी अप्रोच है, सोर्स है, बड़ों से ताल्लुकात हैं, उसकी सज़ा अलग होती है। जो समझे बिल्कुल लावारिस होता है उसकी सज़ा फिर खूब वो अलग होती है। तो यूँ मिला जुला मतलब हिसाब किताब चल रहा होता है दुनिया में। तो अल्लाह पाक रहम करे, हम अपने बच्चों की हिफाजत करें कि बड़ों से दोस्ती ना करें, बिला ज़रूरत इसको बाहर ना निकाला जाए। बाहर निकालना बहुत यानी कि है, बचना बहुत मुश्किल है, बाहर निकलता ही है, बस बाहर निकलता है इसमें फंसता ही है। 4 दीवारी घर की महफूज होती है, ये निकलता है बाहर तो गया। तो इसको समझाते रहें, किसी से कोई भी चीज़ लेनी नहीं है, कोई भी। अब मैं छोटा था ना, मुझे याद है मेरी माँ मुझे नसीहत करती थी, बेटा कोई सोन जो ढिगलो करे ना था बिना बिन्नू, सोन जो ढिगलो, ये हमारी मेमनी का लफ्ज़ है। सोन हम गोल्ड को बोलते हैं मेमनी में, अब मेमन लोग भी गोल्ड बोलते हैं शायद, लेकिन ये असली लफ्ज़ सोन है। सोन उर्दू में सोना, बोला सोन जो ढिगलो, ढिगलो मैंने ढेर। जब तुमको कोई सोने का ढेर भी दिखाए ना तो उसके पास जाना नहीं है। ये माँ ने रटा दिया था बचपन में, तो जहन में बैठा हुआ था। अच्छा कोई चीज़ दे, किसी की चीज़ दे तो लेनी नहीं है। अब जैसे कि बाज़ बच्चे अब भी मैंने देखे हैं, तो पैसे दो कोई चीज़ नहीं लेते, इसके माँ बाप समझदार होते हैं, इसको सिखाया होता है बच्चे को लेना नहीं है किसी से कोई चीज़, और ये बहुत अच्छी आदत है, मज़ा आता है बच्चा नहीं लेता तो फिर वो ये ना मुझे अपने इसके तेरे बातें नहीं लेते, कभी जैसे ईदी और ये देता हूँ ना, तो फिर वो बाप होता है ले ले इशारा करता, तो फिर ये बच्चा पकड़ता है। मगर ये लाखों में कोई, हाँ जनरली तो बच्चा 2 हाथ मारता है, नोट की पहचान है और किसी चीज़ की पहचान नहीं है बच्चों को। ये बड़ा नाजुक दौर है, तो ये सिखाना चाहिए। तो इस तरह कोशिश करते रहें। फिर ये जहाँ पढ़ने जाते हैं तो अब वो सुजुकी में आना जाना ये सब होता है, रिस्क फैक्टर है, लेकिन अब
اس کا حل تو ہے کہ خود والد ہے یا بڑا بھائی ہے، پڑوسی نہیں. ہاں یہ جو 6 سال کے بچے کا کیس ہوا پڑوسی تھا اس کا، یہ بھی لکھا تھا اخبار میں، پڑوسی نہیں ہے، دھندا کیا معاذ اللہ. تو پڑوسی نہ ہو بھلے کتنا شریف ہو، لیکن وہ چیز جو کرواتی ہے نا، وہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے. اس میں کتنا ہی پرہیزگار واقعات ہیں اس کے، عابد یعنی عبادت گزاروں کو کس طرح شیطان اس میں پھنساتا ہے اور سولی پہ لٹکاتا ہے. تو یہ سگا بھائی یا باپ، چچا زاد بھائی نہیں، یہ خود چھوڑ کے آئے اسکوٹر پر یا کار پہ، یا جو لانا لے جانا کرے، یہ خدمت کرے تو بہتری زیادہ ہے. ورنہ خطرات تو ہیں، آئے دن بچے اغوا ہو رہے ہیں، جس کا دیکھو ہمارے پاس دعاؤں کے بھی پیغامات آتے ہیں نا، اس میں لاپتہ ہے لاپتہ ہے، دعا کر دیجیے لاپتہ ہے. تو یہ لاپتہ اللہ بہتر جانے بیچارے کا کیا ہوتا ہوگا بعد میں. یہ لاپتہ بچوں کا، بڑے کو بھی اٹھا جاتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بعض بھیک مانگنے والے، ان کی انگلیاں کٹی ہوتی ہیں، جلا ہوا منہ ہوتا ہے، اور یوں یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا بچہ، ایسا بندہ پیدا نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ آتش زدگی کی وارداتوں میں آگے لگ جاتی، اس میں اس طرح کے حلیے شاید نہیں بنتے. یہ باقاعدہ ان کو اغوا کرتے ہیں، بچہ ہو جوان ہو جو ہاتھ میں آیا اغوا کرتے ہیں. یہ مافیا کام کر رہی ہوتی ہے اس پہ، اور ان کو یہ اس طرح جلو گے، اس کا دماغ مفلوج کر کے بھیک مانگنے پر بٹھا دیتے ہیں، اور دور سے اس کے نگرانی کرتے ہیں کہ کوئی پیسے اس کے چھین نہ جائے. بڑا بھی خطرے میں ہوتا ہے. بس اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کریم رحم فرمائے. اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرنی چاہیے کہ اس کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. تو اخلاص کے ساتھ جو نیک اعمال کرنے ہیں ان سے بھی اللہ پاک کی رحمت اور رضا حاصل ہوتی ہے، اور بڑی بڑی بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. ایک ایمان افروز واقعہ سنی ہے. حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، آخری لقمہ، آخری نوالا کھانے کے لیے اس نے جیسے ہی منہ کھولا، سائل نے یوں صدا لگائی، بھیک مانگنے والے نے، کسی سوالی نے یوں آواز لگائی، مجھے کھانا کھلاؤ. چنانچہ اس عورت نے وہ لقمہ وہ مانگنے والے کو دے دیا. کوئی عرصے کے بعد اس کے ننھے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو شیر چھین کر لے گیا. ابھی شیر تھوڑی دور گیا تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور اس نے شیر کے دونوں چبڑے پھاڑ کر بچہ اس کے منہ سے نکالا، اور عورت کو دیتے ہوئے کہا، لقمے کے بدلے لقمہ. حوالہ عیون الحکایات صفحہ 217. یعنی تو نے سائل، سوال کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، اس کے برکت سے تیرا بچہ شیر کا لقمہ بننے سے بچ گیا. تو یوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا اغوا سے اور مصیبتوں سے، گرنا پڑنا بچوں کا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تو ورد اگر یاد رہ جائے تو آسان ہے، شاید زیادہ مشکل نہیں ہے. یاد رکھنا مشکل ہے. نوٹ ملتے ہوتے نا وہ زیادہ یاد رہتا ہے. تو بچہ اب تو نوٹیں کما کے لائے گا نا انشاءاللہ، بڑا ہوگا تو آپ کو تو اس کی حفاظت کے لیے کو سکھا دیں. سمجھدار بچہ پڑھ لے گا. یہ یا حفیظ ہو یا سلام ہو، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز، یا حفیظ ہو یا سلام ہو. یہ جب پڑھ کے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. نہ بچے کو کوئی اغوا کر سکے گا، نہ بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ گرے گا، ٹوٹے گا، پھوٹے گا. اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا. اس کے مطلب فوائد کافی ہیں اس کے. تو اس لیے بڑا نکلے تو یہ بھی پڑھ لے، تو اس کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم. تو یہ پڑھتے رہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم سلمنی وسلم منی. اے اللہ میری حفاظت فرما اور
मेरे ज़रिए लोगों को खैर ही पहुँचे, अच्छाई ही पहुँचे, ये दुआ कसरत से पढ़ते थे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब घर से निकलते थे ये दुआ पढ़ते थे। हज़रत सईद बिन मुसैयब जो ताबेई बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह अलैह, ये जब फतवा देते, फतवा देने से पहले पढ़ लेते अल्लाहुम्मा सल्लिमनी व सल्लिम मिन्नी, और जब बात बताते कुछ तो भी ये पढ़ लेते अल्लाहुम्मा सल्लिमनी व सल्लिम मिन्नी, ये आसान है। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आदत बना ली है। कोशिश ये होती है मैं घर से निकलता ही कम हूँ, मदनी मुज़ाकरे के लिए निकला तो मैंने पढ़ ली, ये दुआ पढ़ लेता हूँ। फिर वो हदीस पाक की दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुख्तसर सी दुआ है, याद करनी चाहिए। नोट गिनना सबने सीख लिया, नोटों की पहचान सबको आ गई, बहुत कुछ आ गया ना। इंग्लिश टेंसेस भी आपको याद है, अच्छा सही ने आप, चलो इसे सही ने दुआ याद करके दिखाओ, ये याद है, मुबारक। इनको नहीं है कर लो, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाअल्लाह फरिश्तों की हिफाजत में रहेंगे इंशाअल्लाह। और या हाफिज़ या सलाम 11 बार ये भी पढ़ता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके भी मामूलात कुछ बनाए हुए हैं, कभी गाड़ी में सवार होने लगे तो याद आता है तो पढ़ लेता हूँ या हाफिज़ या सलाम 11 बार। इसी तरह जैसे यहाँ से निकलना है घर के लिए तो भी पढ़ लिया है ना, तो ये पढ़ लिया करें, ये ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत पड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह वो प्रोटेक्शन आपको हासिल होगा जो फौज भी आपको नहीं दे सकती, वो तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह के नाम में इतनी बरकतें हैं, ठीक है ना। अच्छा, या हाफिज़ो या हफीज़ो 11 बार रोज़ाना पढ़कर बच्चों पर दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह इग़वा होने से हिफाजत रहेगी। ये अगवा बोलते हैं लोग, अगवा नहीं है लफ्ज़, इग़वा अलिफ के नीचे ज़ेर है। हर किस्म के शर से बच्चों की हिफाजत के लिए बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 बार सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर बच्चों पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह करीम हिफाजत रहेगी। यह अमल दिन में 2 बार सुबह शाम करना है। ये मदनी पंचसूरा सफ़ा 253 पर है। अच्छा, जो वुज़ू के दौरान हर उज़्व धोते हुए या कादिरू कम अज कम 1 बार पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह करीम उसको जिन्नात भी अगवा नहीं कर सकेंगे, इंसान भी अगवा नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसकी भी मामूल है, मेरा या कादिरू पढ़ने का बरसों से मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जिसको खतरात होते हैं उसको ये चीज़ें ज़्यादा सोचती है, आप अपने आप को महफूज समझते हैं तो कुछ नहीं करते, महफूज कोई भी नहीं है। हाँ, एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, लोग धाड़ माड़ होती है, लोग रोज़ गोलियां चलती हैं, लोग बेचारे डाकुओं की गोलियों के शिकार हो ही रहे हैं यार। कितने लोग, किसी की टांग टूट रही है, किसी का सर फूट रहा है, क्या नहीं हो रही है। तो हिफाजत अल्लाह करता है, हिफाजत अल्लाह करता है। हम पढ़ते रहें और अल्लाह पर नज़र रखें, उसकी रहमत होगी तो हम बचे रहेंगे। जब वो नहीं चाहेगा तो फिर जब तक अल्लाह पाक बचाने वाला है, बस हम तो अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करें। तो इसलिए अपनी हिफाजत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की तरकीब बनाते रहें, तो इंशाअल्लाह इस तरह आपके बच्चे जो हैं ये महफूज रहेंगे। बड़े भी ये करते रहें, बड़ों को भी हिफाजत की ज़रूरत ऐसे होता है कि बड़ों को अगवा कर जाते हैं, भिखारी बनाते हैं, तोड़ फोड़ के हाथ पैर काट के और पता नहीं क्या क्या करके। और ये भट्टों में भी ये केस है, भट्टे जो होते हैं ना जंगलों में जहाँ ईंटें बनती हैं, इनमें भी इस तरह के केस पकड़े जाते हैं। बाज़ औक़ात बेड़ियाँ डाल के अगवा किए हुए लोगों से ये काम कराते हैं बेगार का। हर जगह नहीं, हाँ हर भट्टे में नहीं, यानी ये भी होता है, यानी कि अल्लाह पाक बस हमें आजमाइश में ना डाले, अल्लाह पाक इम्तिहान में ना डाले। एक किस्सा में सुनाता हूँ, एक मतलब इलाके का नाम भी मुझे याद है, एक ईसाई भाई थे, उनके वालिद साहब लापता हो गए, वालिद साहब लापता हो गए। फिर वो वालिद साहब गिरते पड़ते बेचारे यूँ तो पहुँचे और
दास्तान इसी अजीब व गरीब थी कि इनको उठा गए, इसमें डॉक्टर भी शामिल था कोई, और इन लोगों ने कत्ल नहीं करना था, उसका गुर्दा लेना था, उसका ऑपरेशन करके गुर्दा निकाल लिया, फिर ये उसको सिला कर मरने नहीं दिया उसको, अपने हिसाब से जो भी इन्होंने कोशिश की और रोड पे डाल के भाग गए। बगैर गुर्दे के बाप घर पे आ गया, किसी तरह भी पहुंच गया। तो ये भी यानी कि होता है कि उस ये गुर्दा बिकता है, तो यानी है मतलब बड़ा अजीब व गरीब माहौल बनता जा रहा है। तो इसलिए वो बस ये वज़ाइफ पढ़ते हैं और कुछ नहीं कहा। आप बोलो गार्ड रखूं, पहले एक दौर चला है कराची में, मुझे याद है लोग गार्ड रखने लगे थे, हालात ख़राब थे, दहशत गर्दियाँ हो रही थी, इसको मारा उसको गिराया। तो फिर क्या होने लगा कि वो चेक करते थे, जिसकी गाड़ी में गार्ड होता उसको मार देते। ये भी हुआ है कराची का, जो बाद लोगों को याद होगा, ये अखबारों में जो आता था। तो ये गार्ड है तो इसका मतलब ये कोई शख्सियत है, मालदार आदमी है या कोई लीडर है, ये इसका करीना, इसको मार देते थे। फिर लोगों ने गार्ड वापस करने शुरू कर दिए, गार्ड रखने बंद कर दिए थे। ये गार्ड खतरनाक है, गार्ड की वजह से मारे जाएंगे। अब है कुछ कहने का, तो ये जो हिफाजत के मैंने औरात बताए ना, इंशाअल्लाह इसको ना बंदूक लगेगी, ना तलवार लगेगी, ना धमकी असर करेगी। अगर हम इसको अपना लें, और अपनाना तो फिर इसको मामूल बनाना पड़ेगा, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा तो नहीं, बिल्कुल यानी कि सी चुके वाह चुके मी चुके, ये हमारी मेमनी कहावत है। सी चुके मी चुके वाह चुके तू ना चुके। चुकना माने भूलना, यानी सर्दी रास्ता भूल जाए ना आए आते आते, ये मुबालगा है। सी चुके सर्दी भले भूल जाए रास्ता, उस सर्दी के मौसम में सर्दी ना आए। मी चुके बारिश के मौसम में भले बारिश ना हो, ये भी चुक जाए भूल जाए। वाह चुके वाह माने हवा, हवा भी रास्ता भूल जाए अपना, तू नहीं भूलना, तू ना भूले। ये मुबालगा है, बहुत मुबालगा है। तो इस तरह मतलब ये कि सब पक्का हो जाए ना। ये जो मैंने चंद औरात बताए हैं, बहुत से औरात होते हैं, अपना जो अपने अपने मशाइख का शजरा होता है, बंदा उसको पढ़ता रहे, उसमें जो औरात होते हैं पढ़ता रहे, तो इंशाअल्लाह वो चलता फिरता रहेगा। अल्लाह रसूल के करम से इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। बच्चे भी अगवा ना हो, बड़े भी अगवा ना हो, हम सबको अल्लाह पाक महफूज फरमाए। और जो ऐसा करते हैं अल्लाह करीम उन्हें सच्ची तौबा नसीब करे, तौबा के तकाजे पूरे करने का भी शरफ अता फरमाए, आमीन। बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। निगरान शूरा भी इस वक्त हमारे साथ मदरी मुज़ाकरे में है और एरोप्लेन में है, और वहाँ पर भी मदरी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। एक सवाल भी आपने किया है वहाँ से, आप फरमाते हैं कि अभी जो गुफ्तगू हुई उसमें करीना और तसर्रुफ़ ये दो लफ्ज़ भी कहे गए, तो करीना और तसर्रुफ़ को आसान अल्फाज में क्या कहेंगे? और इस वक्त जहाँ आपके साथ जो सफ़र में वो यूके और फ्रांस के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, तो मदरी मुज़ाकरा जहाज़ में जो है वो देखा जा रहा है और वहाँ से ये सवाल भेजा गया है। तसर्रुफ तो शायद लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहा कब तसर्रुफ, करीना कहा था, मैं रुजू करता हूँ। करीना लफ्ज दुरुस्त है, लेकिन अवाम मैं खुद कहता रहता हूँ कि अवाम को समझ नहीं आते। तो करीना माने कायदा, बाज़ औक़ात वो ज़ाहिरी बात कि जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है, क़यास हो जाता है, क़यास भी नहीं समझेंगे ना, अंदाज़ा हो जाता है कि मामला यूँ है। जो करीना, कराइन वाज़ेहा, करीना की जमीन बिल्कुल ज़ाहिरी करीना, जैसे कि कोई शराब खाने से निकला, शराब उसने नहीं पी, लेकिन कोई अगर उसको कहेगा नहीं शराबी, तो वो गुनाहगार नहीं होगा। करीना वाज़ेह है कि निकला शराब खाने से, शरीफ आदमी मस्जिद से निकलता है,
शराब खाने से निकलता है। तो इसी तरह सिनेमा घर से निकला, शरीफ आदमी नहीं निकलेगा वहाँ से, वो तो मस्जिद से निकलेगा ना शरीफ आदमी। तो वो करीना है कि फिल्म देख कर आ रहा है, या फिल्में देखता है, या बदमाशों से इसकी दोस्ती है। फिल्म के जो मैदान होते हैं सिनेमा घर में क्या होता है, अच्छे आदमी थोड़ी होते हैं। आमतौर पे जो जिस तरह का माहौल होता है, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को तजुर्बा हो। अब तो घर घर में, खैर वो हाथों में अब तो सिनेमा घर आ गया। अब तो खुदा बेहतर जाने सिनेमा घर में फिल्में भी देखी जाती हैं। नहीं अब अरे वल्लाह आलम सिनेमा घर है अभी, पता नहीं है ना सिनेमा घर ये होंगे, ये भी ज़ाहिर है कि है बड़ी, लेकिन ये इसकी रौनकें कम तो हो गई होंगी, क्योंकि अब वो जेबों में आ गया ना सिनेमा घर। गुनाह घट नहीं गए रौनकें कम होने से, गुनाह बढ़ गए। कब हर एक के पास सिनेमा घर है, मोबाइल में जो चाहो देख लो माज़अल्लाह। बल्कि सिनेमा घर में जो नहीं देख पाते वो इसमें देख लो, अल्लाह पाक शैतान के शर से बचाए। तो ये कि तसर्रुफ माने मनमानी करना समझो, या उसको इस्तेमाल करना, अपना इख्तियार उसमें इस्तेमाल करना, तसर्रुफ। ये मैं इसमें तसर्रुफ करता हूँ कलम में, मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं अपनी मर्जी से इसमें करता हूँ। तो मुख्तलिफ मौके पर एक लफ्ज़ है ना, जब जुमला होता है ना, उस जुमले के मुताबिक उसके माना होते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है, मुलाजा, ये किताब मुलाजा फरमा लीजिए, यानी किताब पढ़ लीजिए, मुलाजा फरमा लीजिए। वो घर मुलाजा फरमा लीजिए, वो घर देख लीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना मुलाहजा फरमाया, मुलाहजा फरमाया ये भी लिखते हैं। तनावुल फरमाया तो आम है, लेकिन मुलाहजा फरमाया वो भी खाया। मैं तो तनावुल को भी अब वो खाया लिखता हूँ, या ब्रैकेट में खाया लिखा। तनावुल में भी शायद अब हमारे यहाँ माहौल में होते हैं ना, वो अभी समझ लेते हैं, जनरल पब्लिक नहीं समझती होगी। तनावुल में, मुलाहजा में, तो मुलाहजा से भी अब मैं अवॉइड करता हूँ, जितना हो सकता है बचता हूँ। अब जो लिखता हूँ ना, मैं एहतियात करता हूँ कि आसान से आसान लिखूँ, क्योंकि हमारा मकसद कोई ज़ाहिर है कि अपने फ़न का मुजाहरा करना तो होता नहीं है, फ़न खिताबत के जौहर दिखाने जैसे ऐसे अल्फाज बोलो कि लोग बोले क्या यार, क्या बोला, क्या पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो फ़ायदा कैसे, मस्जिद कैसे भरेगी हमारी? मस्जिदें भरनी है तो ऐसी बात करनी है जो उनकी समझ में आवे। नहीं मस्जिदों में आए नमाज पढ़ने के लिए खाली वाह 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 नारे लगा के चले जाए, तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो नहीं मिलना चाहिए। हम मतलब कोई जाएं, बयान सुने तो खौफ खुदा पैदा हो जाए, सरकार की मोहब्बत और इश्क पैदा हो, औलिया किराम की मोहब्बत पैदा हो, खौफ खुदा, गुनाह से नफ़रत, नेकी की रग़बत। नमाज में उठने में सुस्ती थी तो चुस्ती आ जाए, नहीं नमाज में उठना है, कज़ा नहीं करनी। तो ये मिले ना तो फिर आदमी बोले कि यार हाँ मिला मिला वही मिला। खाली मतलब यानी कि कुछ भी ना मिले तो फिर ये थोड़ा है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इज्तिमात में आते रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और ना मिला होता तो इतने सारे बैठे ना होते, सर सजे हुए हैं, चेहरे सजे हुए हैं, पेशानियों पर इबादत का नूर, नमाज की निशानी, सजदे की निशानी। ये मिलता है तभी तो लोग दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते हैं, जाते हैं, काफिलों में सफ़र करते हैं। कितना फ़र्क, लाखों करोड़ों दावत इस्लामी में आकर माशाअल्लाह है ना कहाँ से कहाँ निकल गए। तो जो नहीं आते वो आए, अंदर आके देखें क्या मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, ये जो बच्चे का तस्करा मैं चंद बार किया, बेचारा 6 साल का बच्चा, बड़ा फूल जैसा बच्चा था। जो तस्वीर देखी थी मैंने, इनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। माँ बाप भी है हयात, चारों बहन इनकी, भाई इकलौता। तो मैं मतलब यानी कि वाकई दर्दनाक वाक़या है। अल्लाह करीम उस प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे को इनके माँ बाप के लिए आखिरत ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, जन्नत में ले जाने का सबब बनाए, जहन्नम से बचने का सबब बनाए। इनकी बहनों को भी सब्र दे और ख़ानदान वालों को अल्लाह पाक सब्र दे, और अल्लाह पाक इस बच्चे का नेमल बदल इनको अता फरमाए, और औलाद हो जाए, नरीना औलाद हो जाए, नेक औलाद हो जाए, सब आलिम बने, हाफिज़ बने,
और नेक परहेजगार बनकर अपने माँ बाप की ख़ानदान भर की आंखों की ठंडक बने। मैं इनके वालिदैन से और ख़ानदान वालों से, बहनों से, सबसे ताज़ियत भी करता हूँ। सब सब्र करना, हिम्मत रखना, और अल्लाह पाक ने जो किया वो हुआ, वो क़द्दर अल्लाह वमा शाअ फ़अल। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब कोई मुसीबत पहुँचे तो ये कहना के मतलब ये नहीं कि यूँ नहीं करते तो यूँ नहीं होता, और ये कहने के बजाय बस क़द्दर अल्लाह वमा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो मुक़द्दर किया, जो उसने चाहा वो हुआ। इसलिए वो बस हमारा इम्तिहान होता है, हमें सब्र करना होता है। बच्चा तो उसको तो शहादत की मौत मिली, जो जुल्मन बेचारे को कत्ल किया गया, वो शहीद है बच्चा, और नाबालिग बच्चे का हिसाब किताब नहीं है, ये सीधा जन्नत में है। और माँ बाप की भी शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा, और इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाएगा। सब्र कीजिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। मैं आपसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अब मैं जानता तो नहीं, बहरहाल अखबारी खबर है, लेकिन ज़ाहिर है कि मुसलमानों का मुल्क है, बच्चे का नाम भी मुसलमानों वाला था, नाम भूल गया हूँ मैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। अपना सीधा हाथ सीधी आंख पर रखें और उल्टी आंख से चार्ट देखें। जी, अब बताइए, इस ई की टांगें किस तरफ हैं? दाएं तरफ। बहुत खूब। अब ये वाली। दादा जान, हमारी सोसाइटी में मुफ्त आई टेस्ट हो रहा है। जी, वक्तन फ़वक्तन आंखों का मुआयना करवाना अच्छी बात है, और जब टेस्ट मुफ्त हो तो मुआयना लाजमी करवाना चाहिए। आंखें ठीक भी हों तब भी। चलें चलकर देखते हैं, कहीं लाइन ज्यादा लंबी ना हो जाए। बहुत अच्छे, आपकी नजर मुनासिब लग रही है। नेक्स्ट। हमजा रजा, आप पहले आ जाओ। आओ बेटा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। अपनी सीधी आंख पर सीधा हाथ रखो और उल्टी आंख से देखो। बेटा, ये तो बाएं आंख है। माफ कीजिए डॉक्टर अंकल, पहले आंख नहीं दाएं बाएं का टेस्ट हो गया। डॉक्टर साहब, ये आजकल के बच्चे दाएं बाएं क्या जाने, इनको लेफ्ट राइट समझ आता है। अब बताओ, इस ई की टांगें किस तरफ हैं? दाएं तरफ। और ये? ऊपर की तरफ। और ये छोटी वाली? नीचे की तरफ। माशाअल्लाह, आपकी नजर तो बहुत अच्छी है। जी डॉक्टर साहब, मैं लेट कर नहीं पढ़ता और मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता, और रात में होमवर्क करना भी हो तो लाइट मेरे ऊपर या बैक से यानी ऑपोजिट साइड से पड़ती है, जिससे मेरी आंखें मुतासिर नहीं होती। माशाअल्लाह बेटा, कहाँ से सीखी हैं आपने इतनी मालूमात आंखों के बारे में? इस रिसाले से नजर की कमजोरी के असबाब माँ इलाज। ये आप रख लीजिए, हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। बहुत शुक्रिया बड़े साहब, मैं जरूर इसका मुताला करूंगा। और ये भी रख लीजिए। ये क्या है? अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो ये इस्लामिक डेली रूटीन है, यानी हम अपने टाइम को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। ये रिसाला नेकियों भरी जिंदगी गुजारने के लिए गोया एक मेन्यू बुक है, जिसमें नेक आमाल निकात की सूरत में दर्ज हैं। बिलखुसूस नेक आमाल नंबर 9 और 11 आंखों से मुताल्लिक हैं। क्या मतलब? कोई तिब्बी नुस्खा लिखा हुआ है क्या? तिब्बी नुस्खा तो नहीं है, लेकिन नज़र की हिफाजत और आँखों को गुनाहों से बचाने के हवाले से बेहतरीन तवज्जो दिलाई गई है। एब्सोल्युटली राइट। इस पॉइंट में सेल्फ असेसमेंट और आई डिसिप्लिन की बेहतरीन तरगीब दी गई है। ये रिसाला 72 नेक आमाल पर मुश्तमिल है, जिनकी मदद से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी मैनेज करते हैं और इस्तिकामत यानी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी आदत को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। गोया कि हम इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइड कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें तो गोल सेटिंग, हैबिट बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लाइफ कोचिंग पर बेहतरीन पॉइंट्स मौजूद हैं। सिर्फ पढ़ने नहीं हैं, इन पर अमल भी करना होता है। आज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कल अमल भी कर लेंगे। मैं जो देख रहा हूँ इस रिसाले के पॉइंट नंबर 14,
इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉइंट नंबर 22 सोशल एथिक्स और पॉइंट नंबर 50 सिविक सेंस पर मुश्तमिल है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये 72 नेक आमाल का रिसाला, जिसे कोई डेली रूटीन कह रहा है, कोई लाइफ कोचिंग कह रहा है, कोई इसे पर्सनालिटी डेवलपिंग का नाम दे रहा है। आज के एआई के दौर में इन बातों को सीखने के लिए सेमिनार्स, ऑनलाइन कोचिंग, ट्रेनिंग सेशंस और कंसल्टेंसी की भारी फीसें ली जाती हैं, लेकिन आपने तो बरसों पहले ये रिसाला फ्री ही अता फरमा दिया। सवाल ये है कि आपने ये सब चीजें बरसों पहले कहाँ से सीखी और उसके पीछे क्या थिंकिंग थी आपकी? एक मिनट, मेरा भी एक सवाल है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमारे दोनों हाथ एक ही जैसे तो होते हैं, लेकिन हम एक को सीधा और दूसरे को उल्टा क्यों कहते हैं? और हम बच्चे दोनों हाथों में सीधे और उल्टे का फर्क कैसे मालूम कर सकते हैं? माशाअल्लाह, जैसे दाएं बाएं का फर्क आप लोग कर लेते हैं। अब वो हैदर रजा ने कहा कि लेफ्ट राइट में बच्चे समझते हैं, तो हमजा भी भूल गया, वापस वो दाएं कह दिया इसने, हमजा को भुला दिया गया। तो बेचारा ये तो, इसका तो वजूद ही नहीं है, एआई का कारनामा है। तो वैसे राइट लेफ्ट ही होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, या सीधा उल्टा। तो एक लफ्ज के कई माना होती हैं, कई माना होते हैं। एक तो यूं उल्टा, ये सीधा है ना, और दिमाग उल्टा है इसका। अब क्या ख्याल है कि भेजा उलट जाता है। एक लफ्ज का मतलब यानी कि जो सीधी सीधी बात नहीं करता, तेरा दिमाग उल्टा है, तेरी खोपड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है। तो ये कि लेफ्ट को भी उल्टा बोलते हैं, और वो जैसे ये सीधा है, ये उल्टा। चित्त, ये चित्त पट भी सुना होगा आपने, चित्त पट, ये चित्त है, ये पट है, इसको पट बोलते हैं, उल्टा। तो माशाअल्लाह दिलचस्पी इन्होंने की हमजा वालों ने। अच्छा, अब ये कि आखिर में जो सवालात के वो नेक अमाल का रिसाला, तो ये इसको कोई यूं कहता है, कोई यूं कहता है, हर एक अपनी अपनी बोली बोलते होते हैं। चलो कोई सी बोली में आप बोलें, इस पर अमल करें ना यार, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। खाली बोलियां बोलते रहेंगे और अमल नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, है ना। ये देखकर ही मतलब है ना, शैतान जो वहशत दिलाएगा, यार ये कैसे होगा। आप खोल के देखें तो सही, आप एक नजर सारे रिसाले को देख लें, सरसरी नजर डाल दें, देखते चले जाएं क्या है क्या है। तो इस तरह भी आपको इंशाल्लाह इसका शौक पैदा होगा, ये तो मैं भी करता हूँ, ये भी तो मैं करता हूँ, वो भी करता हूँ, हाँ इसमें मेरी कमजोरी है, अब इंशाल्लाह इसकी कमजोरी भी दूर करनी है। तो इस तरह हो सकता है कि आपका वो तरकीब बन जाए। तो इस पर अमल करना है, ये इसने न जाने कितनों को सुधार दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर जो अमल करते हैं उसमें और आम ईसाई भाइयों में बारहा फर्क भी देखा गया है, उनके अंदाज में, उनके चाल चलन में, बैठने में बाज़ वक़्त फर्क हो जाता है, तो अंदाजा होता है कि ये नेक अमाल वाला लगता है। जो बड़ी बड़ी बातें और मुंह फट जो होते हैं ना, ये अंदाजा हो जाता है कि ये देखा नहीं है इन्होंने ये रिसाला। जो ये रिसाला देख लेता तो अमल करता है, बोलेगा तो पहले तोलेगा, बोलेगा कम, आँख के फाड़ फाड़ के इधर उधर नहीं देखेगा, उसको बारहा देखेंगे, वो नीची निगाहें रखेगा, बोलने में कम बोलने की कोशिश करेगा। इस तरह से फर्क पड़ेंगे, क्योंकि ये चीजें हैं इसमें। तो इंशाल्लाह इसको आप करेंगे तो मक्का मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन ये कि मैंने ये जनरल बात की कि जिनको जो भी नाम रखे आप इसमें अमल तो करें, लेकिन इसका जो हमारी तरफ से नाम है नेक आमाल, नेक आमाल ही कहा जाए। ये उर्दू दानों के लिए, अब दीगर ज़बानों में इसके जो तर्जमे होते हैं तो ज़ाहिर है कि उनको उनकी ज़बान में समझाने के लिए नाम देना पड़ेगा, तो पल्ले नहीं पड़ेगा उनको, वो अलग सूरत है। लेकिन ये कि
جن کو مطلب ہے ذرا انگلش بولنے کا زیادہ بعضوں کو شوق ہوتا ہے، انگلش کے ورڈنگ سیکھتے ہوں گے، لغات سے نکالتے ہوں گے، اے آئی سے پوچھتے ہوں گے اس ورڈ کو کیا بولنا ہے، اس ورڈ کو کیا بولنا ہے، یہ رٹ رٹا کر پھر ہم جیسے پر امپریشن ڈالنے کے لیے مولانا کو تھوڑی کچھ آتا ہے، یہ انگلش پھٹافٹ بولیں گے تو ہم لوگ ڈر جائیں کہ یار بڑا پڑھا لکھا ہے. ارے بھائی میرے نزدیک پڑھا لکھا ہوا ہے جس کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا آتا ہو. اب اگر آپ انگلش اچھی بولتے ہیں، آپ سے زیادہ انگریز انگلش اچھی بولتا ہے. جو مسلمان نہیں ہوتا وہ بھی انگلش تو اچھی بولتا ہے، اور یہ مسلمان پڑھتا ہے، قرآن مسلمان پڑھتا ہے. تو جس کو قرآن کریم دیکھ کر درست پڑھنا آتا ہے، جس کو ہم قاری کہیں تجوید کے ساتھ، خدا کی قسم میرے نزدیک تو وہ قابل رشک ہے کہ اس کو اللہ کا کلام پڑھنا آتا ہے. باقی بڑے پڑھے لکھے دیکھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ تو بات کی بات ہے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اعوذ پوری نہیں پڑھ سکتے. بالکل میں صحیح بولتا ہوں. آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو، پوچھنا مت، لڑائی ہو جائے گی. قریب لانا ہے نا سب کو، میں جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں آتا. اب یہ پھر بھی یہ پڑھا لکھا ہے تو ہوئے گا، چلو ہم بھی بولتے تھے پڑھا لکھا ہے، لیکن دل مطمئن نہیں ہے. دل مطمئن اس سے جو قرآن کریم صحیح پڑھ سکتا ہے. اچھا جو عالم دین ہے، خدا کی قسم صحیح معنی میں وہ پڑھا لکھا ہے عالم دین. اس کو یعنی کہ اتنی معلومات ہے قرآن کے بارے میں، حدیث پاک کے بارے میں، دینی احکام مسائل سمجھتا ہے، جانتا ہے. یہ جو بنیادی اور بیسک جو نالج ہے وہ تو ان کو ہے، علماء کو، جن کو بعض عوام حقارت سے معاذ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ، نہیں کرنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. علماء کے بغیر چارہ نہیں ہے. جمعہ کہاں پڑھو گے؟ فلم ایکٹر کے پیچھے پڑھو گے؟ کہاں پڑھو گے؟ مولانا ہی تو پڑھائے گا. جنازہ کوئی گوئی آ کر پڑھائے گا، کوئی بھانڈ بھگت آ کر پڑھائے گا آپ کا جنازہ؟ کون پڑھائے گا؟ مولانا ہی تو پڑھائے گا جنازہ. مولانا سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں یار؟ بہرحال یہ کہ علماء کے دامن میں رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنورے گی ہماری انشاءاللہ. اللہ ان کے قدموں میں ہی ہمیں رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قرینہ کا ایک ورڈ نگران شورا نے بتایا کہ کلیئر سائن، کلیئر سائن. سائن، کلیئر سائن، ہاں ہاں کلیئر سائن اچھا لفظ ہے، واضح اشارہ. جی جی سبحان اللہ. قرینہ کے معنی ایک واضح اشارہ. یہ واضح کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو واضح کرو. نہیں واضح میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے. بالکل یعنی کہ وہ ظاہر، اب ظاہری اشارہ، نمایاں اشارہ، نمایاں بھی نہیں سمجھیں گے شاید بعض لوگ. بہرحال اب یہ سب کو اردو سکھانے بیٹھیں گے تو صبح ہو جائے گی. صبح بھی غلط ہے، صبح ہے درست ہے. کلیئر سائن انگلش میں مکہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ علوی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلام بھائی بھی موجود ہے. شعبہ تاجران کے تحت حیدرآباد سے بھی تاجران اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے موریشس، نیپال، بورے والا پنجاب، مسجد المدینہ، واگا ٹاؤن لاہور پنجاب، جامعۃ المدینہ فورٹ عباس پنجاب، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، فیضان مدینہ سرگودا جناح ٹاؤن فیصل آباد پنجاب، صدر ٹاؤن فیصل آباد، مدرسہ المدینہ ماتلی تحصیل بھینس کالونی کراچی، داروغہ والا ٹاؤن لاہور، سندھ لاڑکانہ فیصل آباد اور گلگت سے میں جمع ہو کر دیکھنے کی اطلاع ہے. جسمانی مریضوں کو روحانی علاج اللہ شفا دے دے. قرض اترے غربت دور ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
जब भी नींद से आंख खुले, ये यानी मुकम्मल आऊज़ो बिस्मिल्लाह और लाहौल 11 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम कर्जा हो तो उतर जाएगा, गुर्बत हो तंगदस्ती से नजात मिलेगी और रोज़ी में बरकत होगी। मुद्दत अमल ता हुसूल मुराद, मशवरा नींद से उठकर कुल्ली करने के बाद पढ़ना बेहतर है। दरखास्त, एक बार किसी कारी साहब को सुना दीजिए। ताकीद, नमाज की पाबंदी जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया ने जो वजीफ़ा इरशाद फरमाया, कर्ज़ उतरे गुर्बत दूर हो, ये अमीर अहले सुन्नत के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल मौलाना इलियास कादरी और इसी तरह ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट मौलाना इलियास कादरी पर अपलोड कर दिया गया। आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं और मदनी चैनल के नाजरीन इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और फिर इसको अपने पास महफूज भी कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, इल्हान नाम रखना कैसा? माशाअल्लाह, इल्हान, इल्हान, इल्हान और नाम आपने सुना, खुश इल्हान नातखान, खुश इल्हान। इल्हान आवाज़, खूबसूरत आवाज़, इस तरह के इसके माना है। तो इल्हान नाम रखने में हरज नहीं है। नाम वो माना होते हैं जिसमें बुरे माना पाए जाएं, इनने अच्छा माना है। अलबत्ता ये किसी सहाबा वगैरह का तो नाम पता नहीं है मुझे, हो तो अब निस्बत की वजह से रखा जाए तो फ़ायदा ज़्यादा है, बल्कि फ़ायदा है। अभी ये मुबाह है, तो इसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि अल्लाह के मुबारक नामों पर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अंबिया किराम के नामों पर, साहबा किराम, अहले बैत, औलिया किराम, तो इनके नामों पर हो नाम बरकत की नीयत से तो ज़्यादा अच्छा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक की कायनात में बहुत सी मखलूक़ात हैं, जिनमें से एक मखलूक हैवानात भी हैं, जिन्हें जानवर भी कहते हैं, एनिमल्स भी कहते हैं। और इन एनिमल्स में आज जिस एनिमल के बारे में बात करेंगे, जिस जानवर के बारे में बात करेंगे, वो है खरगोश। खरगोश की कुछ क्वालिटीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। खरगोश जो है ना, वो तेज़ दौड़ने वाले जानवरों में से है। ये 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। और ना सिर्फ इसे सीधा, बल्कि इसे जिग-जैग दौड़ना भी आता है। अल्लाह की शान है। सोशल मीडिया की मालूमात के मुताबिक खरगोश के बारे में लिखा गया है कि ये उन जानवरों में से है कि जिन्हें गोया हमेशा जल्दी होती है। अब शेख, पूछना ये था कि जल्दी और जल्दबाजी में क्या फ़र्क है, और ऑपोजिट साइड सुस्ती और तहम्मुल मिजाजी का फ़र्क भी बता दीजिए। खरगोश, खरगोश खर के माना है गधा, डोंकी, गोश माने कान, खरगोश माने
गधे जैसे कानों वाला, तो इसके कान बड़े बड़े होते हैं खरगोश के। तो ये ने बताया गया अभी कि ये जल्दबाज होता है। जल्दबाज होता है तो ये नुकसान तो उठाता होगा, परेशान भी करता होगा लोगों को। वो इसका हिकायत भी, इसका वाक्य है, वो दुरुस्त हो ही जरूरी नहीं समझाने के लिए, गलत फहमी हो जाती है ना। अभी गलत फहमी का हमने कुछ प्रोमा भी देखा, प्रोमो देखा ना। तो वो एक बार वो जंगल में एक खरगोश भागा भागा जाए, वो आसमान टूट पड़ा, आसमान टूट गया, आसमान टूट पड़ा। अब दूसरे जानवर भी उसमें पीछे भागने, आसमान टूट गया, आसमान टूट गया। वह किसने बोला? खरगोश बोलता है, ए भागे जा रहे हैं। इसमें लोमड़ी चालाक जानवर के तौर पर मतलब पेश की जाती है। आमतौर पर ये चालाक होती है। लोमड़ी एक छोटा सा जानवर है, कुत्ते से मिलता जुलता। तो उसने मतलब क्या मसला हो गया, आसमान तो ये खड़ा हुआ है सामने, नहीं आसमान टूटा तो नहीं, खड़ा हुआ है। तो हो क्या, ये खरगोश बोलता है। तो ये खरगोश को पूछा, भाई क्या मसला है, तू कैसे ये आसमान टूट गया? मतलब मैं गुजर रहा था, तो बेर के दरख्त से नीचे से गुजरा, तो एक बेर मेरे सर पे जोर से आके गिर के लगा। तो मैं समझा आसमान टूट गया। मैं जल्दी जल्दी में भाग खड़ा हुआ, तो मैंने यूं नारे लगाने शुरू कर दिए, आसमान टूट गया, आसमान टूट पड़ा, आसमान टूट पड़ा। तो यूं जल्दबाजी कि आदमी सोचे समझे और फिर पहले तोले फिर बोले। तो खैर ये इस तरह मतलब खरगोश जल्दबाजी के वाकई बाज़ औक़ात नुकसान होते हैं, बाज़ औक़ात फ़वाइद भी होते हैं। कुरान करीम में इरशाद होता है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 11, वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर वकानल इंसानु अजूला। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। और कभी आदमी बुराई की दुआ कर बैठता है जैसे वो भलाई की दुआ करता है, और आदमी बड़ा जल्दबाज है। सिरातुल जिनान में यदउल इंसानु बिश्शर्र, और आदमी बुराई की दुआ कर देता है। आयत मुबारका खुलासा ये है कि आदमी जिस तरह भलाई की दुआएं मांगता है, उसी तरह बाज़ वक़्त बुराई की दुआ भी कर देता है। जैसे कई मरतबा गुस्से में आकर अपने और अपने घर वालों के और अपने माल और औलाद के खिलाफ दुआ कर देता है। गुस्से में आकर इन सबको कोसता है और उनके लिए बद्दुआएं करता है। तो ये इंसान की जल्दबाजी है, और जल्दबाजी उमूमन नुकसान देती है। अगर अल्लाह ताला इसकी ये बद्दुआएं कबूल कर ले तो वो शख्स या उसके अहलो माल हलाक हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इसको कबूल नहीं फरमाता। तो यूं मतलब ये कि दुआ में भी बाज़ औक़ात लोग को थोड़ा तकलीफ हो, इसका सत्यानाश जाए, बच्चे को तू फट पड़े, इस तरह की बद्दुआएं के बाद बच्चे को कुछ हो गया, फिर ये कि वो पछतावा भी माँ को ही होना है। माँ ने बोला तू फट पड़ा, नहीं फट पड़ा, अब सर पकड़ के माँ ही रोएगी, ये मैंने क्या बोल दिया। इसलिए माएँ बहुत बददुआएं देती हैं बाज़ औक़ात बच्चों को। बच्चे तंग भी ऐसा करते हैं कि वो घूम जाती है क्या, लेकिन घूमनी नहीं चाहिए। बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा है, इसलिए वो सब्र से काम ले, इनको बद्दुआएं ना दें कि फिर आपको ही तकलीफ होगी। कभी कबूलियत की घड़ी भी होती है। अच्छा, इसमें जो ये बताया गया कि आदमी बड़ा जल्दबाज है, इसे सामने रखते हुए देखा जाए तो हमारे माशरे में लोगों की एक तादाद ऐसी नजर आती है जो दीनी और दुनियावी दोनों तरह के कामों में नामतलूब जल्दबाजी से काम लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती, फिर भी वो जल्दबाजी कर रहे होते हैं। जैसे वुजू करने में, नमाज अदा करने में, तिलावत कुरान करने में, रोज़ा इफ्तार करने में, तरावीह अदा करने में, कुर्बानी करने में, ज़बह के बाद जानवर की खाल उतारने में, अरकान हज अदा करने में,
دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں، کسی کو گناہگار، یعنی دعا جلدی قبول ہو یہ بھی چاہتے ہیں، بد دعا بھی کر مارتے ہیں. تو کسی کو گناہگار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے نہ دنیا مانگنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، نہ شکایت کرنے میں، گلہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، یعنی کسی پر غصہ آیا تو اس پر عمل کر دیا، اس غصے پر توڑ پھوڑ کر دی، مار دھاڑ کر دی غصے میں آ کے، غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے میں، اور روڈ بار کرنے وغیرہ بے شمار دینی اور دنیاوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ دنیاوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دو چار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ندامت یعنی شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ درج ذیل ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان دو حدیثوں سے نصیحت حاصل کریں اور جلد بازی کی آفات اور اس کے نقصانات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت سہل بن سعد ساعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توقف کیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی، یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے. یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کرنا مذموم نہیں، یعنی وہ برا نہیں ہے، مذمت اس کی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان میں جلدی کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب ہے. جیسے قضا نمازیں اور نماز جنازہ ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے وغیرہ میں جلدی کرنا. اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے، جس سے ہر آدمی موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو سمجھے منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا جلد بازی کہلاتا ہے. وہ جلدی نے جلد بازی کا فرق پوچھا تھا نا، تو سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کر ڈالنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے. اسے عجلت بھی کہتے ہیں. اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں، اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے، اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کے فیس بک پیج لائیو محمد علی قریشی کا سوال ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے لا علمی میں یا زبان پھسل جانے کی وجہ سے تلفظ الفاظ کچھ کا کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا، اور ایسی غلطی اگر ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے، اور کیا اس پر کوئی توبہ بھی ہے یا کوئی ایسا عمل اس کے بدلے میں کیا جائے گا؟ اس میں یہ کہ اس کو کچھ پڑھنا کچھ چاہتا تھا، نکل کچھ گیا، اس کو سبقت لسانی بولتے ہیں، زبان پھسل گئی، نکل کچھ گیا، کہنا کچھ چاہ رہا تھا. تو اس میں یہ کہ جو کہا اس نے یہ پڑھ لیا غلط، تو اس کو ریپیٹ کر دے، دوبارہ لوٹ کر آ جائے اور درست پڑھ لے تو صحیح ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے غلام مجتبیٰ تاری ٹھٹھا سے سوال کر رہے ہیں کہ صغیرہ گناہ
किन गुनाहों को कहा जाता है, बराए करम चंद मिसालें भी बयान फरमा दें ताकि ये समझने में आसानी हो जाए कि कौन से गुनाह सगीरा और कौन से कबीरा है। कबीरा माने बड़ा गुनाह, तो जिस पर लानत होती है ना, जिस गुनाह पर लानत अजाब की वहीद हदीस पाक में बयान होती है, वो कबीरा कहलाता है। यानी एक तो ये कौल है बाज़ के मुताबिक कि जो ख़ास हदीस पाक में जिनको कबीरा फरमाया, जैसे बाज़ में 3, बाज़ में 4, बाज़ में 7, तो जिन जिन गुनाहों को कबीरा फरमाया वो कबीरा हैं, इसके अलावा दीगर सगीरा हैं। दूसरी तारीफ़ वो कि जिस पर अजाब की कोई वईद आई हो कुरान और सुन्नत में, अजाब की वईद जी, तो लानत आई हो, वो भी तीसरा कौल है कि लानत आई हो तो उसको भी कबीरा कहेंगे। बाकी इसके अलावा जो होंगे वो सगीरा होंगे, लेकिन फिर वही आगे जो सगीरा के हवाले से तफसीर है वो आप इरशाद फरमा दें कि सगीरा को सगीरा समझना कैसा है। सगीरा छोटा गुनाह, कबीरा बड़ा गुनाह, तो जिसमें अजाब की वईद आई हो हदीस पाक में, ऐसा गुनाह जो है, या खुद लफ्ज़ कबीरा गुनाह भी होता है, कबाइर का लफ्ज़ होता है हदीसों में, तो वो तो ऑलरेडी है ही कबीरा, तो ये कबीरा होते हैं बड़े गुनाह। और सगीरा जिसको कबीरा नहीं कहा गया, जो कबीरा की तारीफ पर नहीं आता, वो सगीरा यानी छोटा गुनाह। और सगीरा को छोटा समझकर अगर कोई करेगा, छोटा गुनाह है, तो फिर ये सख्त कबीरा हो जाता है। इसलिए कोई भी गुनाह समझो कि करना ही नहीं है, कि छोटा गुनाह भी है, उस पर भी जहन्नम का अज़ाब का वो हकदार तो बन जाता है। इसलिए हर गुनाह से बचना ज़रूरी है। अब इसकी फहरिस्त कि कौन सा सगीरा कौन से कबीरा, बाज़ गुनाहों का अंदाज़ा है, मुझे पढ़ा है, लेकिन मेरा ख्याल इसकी हाजत नहीं है कि फिर ये शैतान जो है बेबाक बनाएगा इंसान को। अच्छा ये सगीरा है, अच्छा ये अच्छा नहीं, मतलब सिगरेट नोशी मना लिखा होता है ना, सिगरेट इतनी सी तो इसकी डांडी होती है, शरारा ना, इतना सा तो होता है। और गोदाम के बाद लिखा होता है ना नो स्मोकिंग, उसमें लिखा होता है अपने क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप, उस पर भी लिखा होता है नो स्मोकिंग, सिगरेट नोशी मना है। इसी वजह से कोई बेख्याली में जलती सिगरेट डाल दे तो आग ना लग जाए, और लगती भी आगे बाजू का, तो इस तरह तो छोटा गुनाह भी जहन्नम में झोंक सकता है। इसे न छोटा करना है न बड़ा करना है, न छोटी आग से खेलना है न बड़ी आग से खेलना है। अक्लमंद कभी भी छोटी आग से नहीं खेलेगा, कि छोटी आग भी अगर ये लग गई तो फूंक देगी, सारा पूरे गोदाम को फूंक देगी। अल्लाह हम सबको हर तरह के गुनाहों से महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने महफिल अली असगर सजाई है। तो इस सिलसिले में हमने बच्चे खुसूसन सादात किराम के बच्चे जमा किए और इनमें महफिल अली असगर की है ईसाल सवाब के लिए हजरत अली असगर के। तो मैं 2-3 फजाइल आपको अहले बैत अत्तार के अर्ज करता हूँ। नाना हसन हुसैन ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उस शख्स के लिए है जो मेरे घराने यानी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला हो। या अल्लाह पाक हमें तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है और इनके घराने से भी मोहब्बत है। ऐ दाग क्यों न मुझको शफाअत की हो उम्मीद, मैं हूँ मुहिब हुसैन का दुश्मन यजीद का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत और नंबर 3 कुरान पाक पढ़ना। साहबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। अभी इंशाल्लाह मजीद बच्चे कुछ नाते सुनाएंगे हमें। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान।
असहाबो अहले बैत का उस्मान फिदा का कल्बी या हैदर जानम फिदाए अहले बैत जानम फिदाए अहले बैत इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तशरा खान, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम शहादाए करबला, बिलखुसूस हज़रत अली असगर नन्हे शहीद करबला को भी इसका सवाब इनायत फरमा, सारी उम्मत को इसका सवाब इनायत फरमा। असहाबो अहले बैत का मेरी झोली में न क्यों हो दो जहां की नेमतें, मेरी झोली में न क्यों हो दो जहां की नेमतें, मैं हूँ मंगता मैं गदा असहाबो अहले बैत का, अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। इरशाद हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो ख़ताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर हो मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर, यानी उस भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत अली असगर रहमतुल्लाह तआला अलैहि इमाम हुसैन बंदगी के शहजादों के लिए आज महफिल अली असगर का एहतमाम किया गया और बिलखुसूस मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दावत व रहमतुल्लाह अलैह की बदनवासी हैं, इन्होंने माशाअल्लाह में कलाम सुनाया। माशाअल्लाह। जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सलूक करे मैं उसको क़यामत के दिन उसका बदला अता करूंगा। सुभान अल्लाह। हाँ जी बेटे बढ़िया असहाब अहले बैत है, आशिकाने मुस्तफा असहाब अहले बैत है, मोमिनों के रहनुमा असहाब अहले बैत है। किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा है, मदहा खाने अहले बैत। क्या शहीदे करबला फरियाद है, नूरे चश्मे फातिमा फरियाद है, अफरीयत पर का सदका जो के है, हम शबीए मुस्तफा फरियाद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हज़रत अली असगर नन्हे मुन्ने शहीद करबला कि हम सबको बरकत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने और जो फ़ज़ाइल वगैरह सुने उन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और अगर आपको इनके जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे उन पर सेंड कर दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मौलाना इलियास कादरी के नाम से यूट्यूब चैनल पर ये मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया जा रहा है, वहाँ से इनके जवाबात आप निकाल कर जो व्हाट्सअप नंबर और जो SMS नंबर बताए जाएंगे उन पर सेंड कर दीजिए। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, वज़ू करते हुए हर उज़्व धोते वक्त कम से कम 1 मरतबा क्या पढ़ने वाले को जिन्नात और इंसान अगवा नहीं कर सकेंगे। सवाल नंबर 2,
بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے تب تک کس چیز سے امن میں رہتا ہے؟ سوال نمبر 3، جس شخص نے اپنے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اچھے کام پر ہی دن کو ختم کیا تو اللہ پاک فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ 4 جولائی ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے، آئیے ان کے جوابات بھی جانتے ہیں اور قرآن دازی دیکھتے ہیں۔ 4 جولائی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، زندہ لوگوں کی طرف سے میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ جواب، دعائے مغفرت کرنا۔ سوال نمبر 2، اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قوم کے کتنے نیک لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا جو برائی کو دیکھ کر اس سے منع نہیں کرتے تھے؟ جواب، 40,000۔ سوال نمبر 3، مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کس تاریخ کو ہوا؟ جواب، 18 محرم شریف کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: شیخ خان محمد عطاری، حاجی مرید گوٹ، کراچی سندھ پاکستان; محمد بلال رضا عطاری، گلشن کالونی، ٹیکسلا، پنجاب پاکستان; محمد عامر مشتاق عطاری، جھنگ، پنجاب پاکستان; بنت معین الدین عطاریہ، اورنگی ٹاؤن، کراچی سندھ پاکستان; محمد کاشف عطاری، قاسم آباد، حیدرآباد سندھ پاکستان; حسن رضا بن رانا افضل، ملتان پنجاب پاکستان; بنت عبد القیوم، ٹنڈو جام سندھ پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام حسن رضا بن رانا افضل، ملتان پنجاب پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔ مشکلیں حل ہوں، روزی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات آسان فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان یعنی خیال بھی نہ ہوگا۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط پہلی پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں کا پابند بنا کر ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط 1۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف، امیر اہل سنت کا ایک اہم مکتوب، انسان، بادشاہ اور گھٹیا لوگ، دل کب مر جاتا ہے اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 23 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ فیضان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 7,81,074 781,074، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,72,477 772,477، مجموعی کارکردگی 15,53,551 1,553,551۔ ماہ محرم شریف میں امیر اہل سنت دارالمدینہ برکاتہ العالیہ کی جانب سے مختلف دینی تحریکیں عطا ہوئی تھیں، جس میں 10 روزے رکھنے والے، اسی طرح 5 روزے رکھنے والے اور 2 روزے رکھنے والے، اور اسی طرح سے صحابہ و اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے یاسین شریف روزانہ پڑھنے یا سننے والے کی بھی کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے، جس میں سے کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 64,499، 64,499، اسلامی بہنوں کی تعداد 89,030، ٹوٹل تعداد 1,53,529، 1,53,523۔
اسی طرح یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 88,834 88,834، اسلامی بہنوں کی تعداد 68,854 68,854، ٹوٹل نیتیں 1,57,688 1,57,688۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا چٹاگانگ بنگلہ دیش کے اطراف میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، تو دعا کے لیے بھی عرض کیا ہے کہ دعا بھی فرمائے۔ الحمدللہ FGRF کے ذریعے وہاں پر امدادی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے۔ چٹگام بنگلہ دیش اور اطراف میں جو سیلاب آ گیا ہے، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس میں عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ پاک جو بیچارے اس میں متاثر ہوئے، تکلیف میں آئے، کہ تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو پریشان ہوئے ان کو خوشیاں دے دے، جو بچھڑ گئے اپنے پیاروں سے ان کو خیر سے ملا دے۔ جو بھی نقصان ہوا مولا کریم ان کا نعم البدل، اچھا بدلہ ان کو عطا فرما دے۔ سب پر فضل و کرم فرما۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔